Palestinians, to support the Palestinians means that you stand against every violation of human rights. फ़लस्तीनी जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं और हम सब मुसलमानों से अपील करते हैं कि उनका साथ दें। के मजलूम भाइयों के लिए इसके साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर यासीन, आप देख रहे हैं इब्रत न्यूज़। क़िबला अव्वल अंबिया की पाक सरजमीन जुल्म से काँप रही है। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से कराची मेन शाहरा फैसल पर गज़ा मिलन मार्च का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीमुर्रहमान साहब कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग, ख़वातीन, मासूम बच्चे और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। Our message for the people of Gaza is that we stand with you. We stand against the genocide that Israel is doing against you. And we call upon all of the Muslim leaders who are completely silent. We're not just here protesting against the genocide against you, but against the fact and against all of those Muslim leaders, calling on those Muslim leaders who are completely silent as you die, as you are murdered by those Israelis. We completely stand against you. We support all of your rights, and we stand for those rights wherever we can with all our people. Yes. This is a human rights issue. This is not just an issue of whether a political issue or an issue that is very complicated or controversial. This is everyone's issue. To support the Palestinians means that you stand against every violation of human rights. You stand against a people's right to live in their homes. This is everyone. This isn't just a Muslim. This isn't an ethnic issue. This isn't a racial issue. This is a Muslim issue, not just a Muslim issue. This is everybody's issue. This is a humanitarian crisis. The UN just released a security issue, a security alarming warning situation. There's a starvation going on. It's ridiculous that we have to claim, we have to state facts to prove that this is a genocide. What Israel is doing, it's a complete genocide. And the Palestinians under Article 51 of the UN Charter have complete right to defend their homeland. It is a right of every UN member to defend against anyone who is militarily harming them. And Israel is a military occupation against Palestine. What more do I need to say? फ़लस्तीन के लिए हमारा खून भी हाजिर है। हम हर वक्त जिहाद के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कहा जाएगा इंशाल्लाह जिहाद के लिए पहुंचेंगे इस्राइल। और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ये पैगाम है कि वो हिम्मत से काम ले। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद करीब है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की मदद पहुंचने वाली है इंशाल्लाह। के मजलूम भाइयों के लिए इसके साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। इस वक्त जो है पूरी आलम इस्लाम जो है जहाँ सब इस वक्त गम में हैं, और हमें जो वहाँ के हम जो भी खबरें आ रही हैं गज़ा से, उससे बहुत हम ज़्यादा गमज़दा हैं। तो मैं पूरे आलम इस्लाम से ख़ास तौर पे अपील करूँगी उनके हुक्मरानों से कि उनके लिए अमली इक़दाम उठाएँ। हमारी फ़ौजें मौजूद हैं, उनको वहाँ भेजें और इसराइल पर दबाव डालें कि वे जुल्म से ख़त्म करें। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उनसे हमारा जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है, और जो उनके साथ हो रहा है वो वहाँ तक नहीं रुकना। अगर हम नहीं निकले तो वो आगे भी बढ़ेगा। तो इसलिए उनकी इसराइली मसनूआत का बायकाट भी करें और फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इज़हार यकजहती करें, और बस उनके लिए दुआ भी करें, उनके लिए फ़ंड्स भी दें, बायकाट भी करें इसराइली मसनूआत का। My message to the people of Gaza is that the people of Pakistan are always with you and their hearts bleed for you, even though we are far apart, but our hearts are so close to you. Today, the entire world is ashamed at the genocide of Palestinians. They are innocent people who have no food and shelter just because they refuse to give up their right of freedom. Israel has gone to the lowest depths of inhumanity, which is supported by the US governments and which is strengthened by the weakness of the Muslim world. I am here to condemn the brutality of Israel and show solidarity with our brothers and sisters of Gaza. ये लाश ये सिर्फ फ़लस्तीन के बच्चों का नहीं है, ये सिर्फ गज़ा के बच्चों का नहीं है, ये उन हुक्मरानों का है जिन्होंने हमारे टैक्स के पैसों से लाखों करोड़ों
डॉलर से ये एटम बम बनाया, ये असलहा जमा किया। आज ज़रूरत है, सबसे पहले जब एटम बम बनाया गया तो फ़लस्तीन के बच्चों ने, फ़लस्तीन के लोगों ने खुशी का इजहार किया। आज वो इस मुंतज़िर है, आज वो इस इंतज़ार में है कि कोई उम्मत मुस्लिमा का लीडर, कोई उम्मत मुस्लिमा का लीडर आए और गज़ा के मुसलमानों को बचाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पैगाम है हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए, खुदारा अपने ज़मीरों को जगाएं। चंद निवाले आप लोग फॉरगो नहीं कर रहे हैं गज़ा के लिए, तो ये आप लोगों को आखिरत में बहुत बुरा जवाब देना है, हिसाब देना, और आखिरत से पहले आपको इस दुनिया में भी हिसाब देना है, क्योंकि इसराइल की मुनाफ़क़त जो है वो पूरी दुनिया के सामने, जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से सामने, उसके बावजूद आप लोग अपनी आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं। तो इस तमाशे का हिसाब देना है आप लोगों को। तो खुदारा अपनी जो है ना ज़मीरों को जगाएं, इससे पहले कि आप लोग अपने घरों को आएँ नौकरियों से, तो आप लोगों को भी आपके बच्चों की सर कटी हुई लाशें मिलें। तो उस दिन से डरें और खुदारा जागे, बाहर निकलें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसराइल का बाइकआउट करें, उसके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और अपने ज़मीरों को जगाएं। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम जो है इंतहा की मुनाफ़क़त कौम है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमें डिसअपॉइंट कर रही है। फ़लस्तीनी जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं और हम सब मुसलमानों से अपील करते हैं कि उनका साथ दें और उनकी मसनूआत का बाइकाट करें इसराइल की, और भरपूर साथ निकलें और सब हर तरीके से उसकी मदद करें। हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आंखें खोलें, उनके दर्द को महसूस करें। वो भी एक कहते हैं ना, एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ हो तो एक जिस्म का एक हिस्सा दर्द करता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है, तो उनके दर्द को क्यों महसूस नहीं किया जा रहा है।